Students. Good evening, sir. So, as you know very well, our today's topic is operator from JavaScript, how the operator works in JavaScript. So, before anything, I would like to share my screen, and now we will see about what is the role of Java operator in JavaScript and what is operator. Actually, the very basic thing about the operator is that which operator when the operation is going to be run or going to be applied on any contain on any object, there is a compulsory, that is, there must be a operator. Then there must be an operator, like as if you like to add 2 with 3. अगर आपको 2 को 3 के साथ ऐड करना है, so there is a uh, there is a need of operator to add 2 and 3. तो 2 और 3 को ऐड करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग? Sir, arithmetic. Sir, plus. Arithmetic operator. अर्थमेटिक, दैट इज कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर. एंड वहां पे एग्जैक्टली हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? एग्जैक्टली कौन सा ऑपरेटर वर्क करता है वहां पे ऐड करने के लिए? ऐड का ऑपरेटर होता है ना, प्लस ऑपरेटर नहीं? इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर डिवीजन करने के लिए, नहीं? इस तरह से ऑपरेटर यूज करते हैं. और उनकी जब वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं. नहीं, ऐसा करते हैं कि नहीं? Yes, sir. So now this is the day where we are going to study about the operator, the basic things about the operator, and now going to see what is operator. So the very first thing is about operator. JavaScript operators can be used to perform various operations such as arithmetic operator, comparison operator, logical operator, relational operator, assignment operator, and conditional operator. There are 6 type of operator and another operator too. So here the basically 6 type of operator are there. So now going to see the very first operator, that is arithmetic operator. Okay, this is arithmetic operator. There are following arithmetic operators supported by JavaScript language. Assume variable a holds 10 and variable b holds 20. Then what is the value of a plus b? यहाँ पर तो ये ऑपरेटर आपको बिल्कुल सिंपल है. दिस इज प्लस ऑपरेटर वेयर द वैल्यू ऑफ a is equal to 10 and b is equal to 20. Then a plus b is equal to, what will the value of a plus b? 30. 30. Sir, 30. Okay, because as the description is Yes, saying sir, 30. okay, because as the description is saying adds two operands, two operand, it means to say plus is operator and a and b is operand. Okay, a and b is operand and plus is operator, and the operation is called addition. ठीक है, यहाँ पर a and b ऑपरेंड हो रहे हैं जिन पे कि ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है. ऑपरेशन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. और ऑपरेटर कौन है? ऑपरेट करने वाला कौन है? तो ये प्लस है. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड ऑपरेशन. ऑपरेंड क्या हुआ यहाँ पे? ए और बी. ऑपरेटर क्या हुआ? प्लस. एंड ऑपरेशन क्या हो रहा है? Plus. एडिशन का. ठीक है, मेरी Okay, sir. मुझे लगा कोई बच्चा बोलेगा उधर से कि सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है. ओके, सो इन द सिमिलर वे a माइनस बी इज इक्वल टू, जब 10 में से 20 को घटाएंगे तो कितना होगा हमारे पास? 10. Sir, 10. 10 10. होगा या माइनस 10 होगा? Minus 10. Minus 10. When Ten होगा. minus 10 होगा. And When we will multiply 10 by 20, what will be the result? 200. 200. 200 exactly. And when we will divide 10 by 20, 200. 10 by 20 2. exactly. I was waiting for that answer because मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों का आंसर क्या आता है. You are not going to see this is b by a, b by a, not a by b. I am asking you to a by b and you are saying the result b by a because you are looking at here. आपकी नजर यहाँ पर है ना कि इन सभी लाइंस पे, है ना? है ना? तो आप अब अपना आंसर बताइए, टू किन के आ रहे हैं? सो व्हाट विल द रिजल्ट? 10 by 20. 10 by 20 का रिजल्ट क्या आएगा? 1 by 2.
नहीं? Yes, sir. और 20/10 करेंगे तब हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 2. राइट। तो एंड दिस इज मॉड्यूलर डिवीजन। मॉड्यूलर डिवीजन इसमें क्या करता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको वहां पर रिमाइंडर को यहाँ पर दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये मॉड्यूलर डिवीजन करता है तो हमारे रिमाइंडर को यहाँ पे काउंट किया जाता है। व्हेन वी विल डिवाइड b बाय a, b बाय a, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा b बाय a का? मॉड्यूलर डिवीजन है एक्चुअली। जब b को 20 को सॉरी 20 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 2 बार में हो जाएगा। Yes, sir. कोई रिमाइंडर तो नहीं आएगा ना? रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर नहीं आएगा No, sir. तो मॉड्यूलर डिवीजन क्या करता है? मॉड्यूलर डिवीजन सिर्फ रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है, रिमाइंडर को वहां पे शो करता है। तो यहाँ जब मैंने 20/10 किया तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ तो बचा नहीं। ठीक है, 20/10 टू टाइम में पूरा का पूरा हो गया खत्म। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, दैट दिस इज 0, राइट। और अगर यही हमारा Yes. रहता 21/10 तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता? 21/10 में रिमाइंडर क्या आता? 21/10 में रिमाइंडर कितना आ जाता? Sir, 1. 1। okay, now this is a plus, this is increment operator, increase integer value by 1। जब आप a प्लस प्लस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 11. 1 से इंक्रीज कर जाती है। और अगर माइनस माइनस कर देते हैं तो ये क्या करता है? वैल्यू को डिक्रीज कर देता है बाय 1। अगर मैंने लिख दिया 10 प्लस प्लस तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11. और अगर 10 माइनस माइनस कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? देयर आर फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। एज्यूम वेरिएबल a होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल b होल्ड्स 20। अब यहाँ पे क्या करता है? दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपेयर कर रहा है कि जो भी हमारा ऑपरेटर है उसके लेफ्ट साइड जो वैल्यू है वो राइट साइड वाली वैल्यू से बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ना, दिस आंसर विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें क्या करना है? सिर्फ ट्रू और फॉल्स करना है। ये देखना है कि जो हमारा ऑपरेटर है उसके लेफ्ट साइड जो वैल्यू है वो राइट साइड वाली वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो इफ वी आर गोइंग टू से a इज इक्वल टू b तो क्या होगा? It's not true. तो ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं है, राइट। Yes, sir. अगर मैंने कहा 10 इज नॉट इक्वल टू 20 तो क्या है? सही है या गलत है? Sir, true. Sir, true. True. ओके, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया 10 20 के बराबर नहीं है, ये हमारा ट्रू है। और मैंने ये कहा 10 और हाँ मैंने ये कहा a इज इक्वल टू, अच्छा नॉट ट्रू, ठीक है। अगर मैंने कहा 10 इज नॉट इक्वल टू 20 तो ये भी हमारा ट्रू है। अगर मैंने कहा 20 इज ग्रेटर देन 10 तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? Sir, true. Sir, true. इफ आई एम सेइंग 20 इज ग्रेटर देन 10 then it is true। So false. Yes, sir. It's true. False. क्यों फॉल्स? मैंने बोला आपकी नजर वहां पे है ही नहीं, आप वहां सुन ही नहीं रहे हो। मैंने कहा 20 इज ग्रेटर देन 10। इज दैट Yes, ट्रू sir. और It's नॉट? true. देन अब आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा 10 छोटा है या 20 छोटा है, True है. बिकॉज आपकी नजरें तो यहाँ पे टिकी हुई है कि यहाँ पे जो है फटाक से आंसर देना है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग्स कि हमें एक बार इसको भी देखना है या इसको समझना भी है। फिगर को देखना नहीं है कि फिगर मैंने क्या दिया, इसलिए मैं फिगर को बीच में चेंज कर रहा हूँ और आप लोग बार बार उसमें भी फंस जा रहे हो। नहीं, गुड, ओके। तो 20 इज लेस देन 10 और नॉट? False. No, sir. तो No, दिस sir. इज नॉट ट्रू और यू मे से दिस इज फॉल्स। नहीं, अब ठीक है, बच्चे समझ गए थोड़ा। check if the value of left operand is less than value of right operand, if yes the condition becomes true। तो यहाँ तक तो ठीक है, आपका ट्रू फॉल्स हो गया। नहीं, यहाँ पर तो इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन हो गया। अब देन नेक्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू। then what will be the value? 10 is greater than equal to 20 or not? It is true or not? 10 is greater than or equal to 20? Not now? No, sir. False. It means to say this is false। Not. ठीक है,
तो अगर मैं 10 की जगह a बोलूं और 20 की जगह b बोलूं तो ये भी ठीक होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिकॉज वी हैव असाइंड द वैल्यू ऑफ a is equal to 10 and b is equal to 20, right? Yes, sir. now Yes. the now the Yes, next thing sir. is 10 is less than equal to 20. 10 is less than equal to 20. Is that right or not? Yes, sir. It's true. Right, sir. अच्छा, अच्छा, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्योंकि यहाँ जो 10 है उसकी वैल्यू आपकी 20 से या तो लेस है या तो इक्वल टू है। इट मीन टू से दोनों में से एक कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है, या तो लेस देन है या इक्वल टू, तो वो कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ 10 जो है 20 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया। अगर यहाँ पे 20 लिखा रहता, 20 इज लेस देन इक्वल टू, तो 20 तो लेस देन नहीं होगा, लेकिन 20 इज इक्वल टू 20 होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भी ये फॉल्स, ये सॉरी ये ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। Yes, sir. Now this is a logical operator, that is logical operator, they are following logical। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक ठीक है। No, sir. कंपैरिजन ऑपरेटर No, तक sir. ओके है, कोई इशू? Yes, sir. ओके, नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज दैट इज आवर लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल, देयर आर फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। एज्यूम वेरिएबल a होल्ड्स 10, वेरिएबल b होल्ड्स 20, ठीक है। someone tries to say something, Yes, sir. तो ओके, यहाँ पे क्या होता है, अब मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया, कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक नया चीज होगा, दैट इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को देखते हैं कैसे, और ऑपरेटर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब लॉजिकल ऑपरेटर आपका वर्क करता है ए एंड बी, Yes, sir. ठीक है, तो हमारा जो बाइनरी बाइनरी ऑपरेटर होता है ना, जो बाइनरी फिगर होते हैं हमारे, बाइनरी फिगर कौन कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, किसी को कोई आइडिया, बाइनरी नंबर कौन कौन से हमारे पास? Sir, 0, 1. 0 और 1 हमारे पास बाइनरी नंबर है। दैट्स गुड। किसने आंसर किए? Sir, Pragya. गुड। प्रज्ञा आप तो 11th से हो, Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर क्या कहता है, यहाँ पे दो चीज होते हैं, 0 और 1, ठीक है, आइदर 0 आइदर 1। तो 0 1 का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले तो एक काम करते हैं ना, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 0 का हमारे पास दो है ना, दो वैल्यू है ना, एक ए है, दूसरा बी है। अब ए की वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं, फिर बी की वैल्यू 0 रखते हैं, फिर क्या करते हैं, एक की वैल्यू 0 करते हैं, एक की वैल्यू 1 करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक की वैल्यू कहाँ गया ये, ओके। तो इसकी वैल्यू 0 0 हो गई, 0 1 हो गई। अब इसकी क्या करते हैं, इसका 1 करते हैं, इसका 0 करते हैं। अब दूसरा क्या होगा, इसका 1 करते हैं, इसका 1 करते हैं। यही कॉम्बिनेशन बनेगा ना आपका। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका sorry, ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है आपका, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी एक अगर 1 हो गया, कोई भी एक अगर, 0 का मतलब हो जाता है यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में, 0 का मतलब हो जाता है, 0 का मतलब है, सॉरी 0 इसका मतलब है फॉल्स,
ठीक है, और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या होगा यहाँ, True. ठीक है। तो हमारा ये ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी, दोनों में से कोई एक वैल्यू भी आपका 1 हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0. 0। अब नीचे False. 0, अब नीचे क्या है, 0 एंड 1 है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1. ठीक है। दूसरा क्या है, 1 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1. 1। अब यहाँ पे 1 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1. Sir, 1. 1। अब यहाँ पे कहता है दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, जैसे आप सॉरी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कहता है called logical and operator if both the operands are non zero then condition become true, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या है, ये नॉन जीरो वैल्यू है, 20 की वैल्यू है नॉन जीरो, तो ए एंड बी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, है ना। अब इसमें इसमें एक चीज आप समझ लेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए आपको बताता हूँ। जब जैसे हम ऐड करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऐड करने में क्या करते हैं हम लोग ना, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे चलो एक टेबल बनाते हैं, मान लो हमें क्या करना है, 15 एक नंबर ले लो, 15 एक नंबर ले लो, हाँ। इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो हमने किससे डिवाइड किया, 2 से, ठीक है। तो जब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा हमारे पास, 7. 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7, और हाथ रिमाइंडर कितना आएगा, 1. 1। 1. तो 7 यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ लिखा। अब 7 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 3 3, और और 1. रिमाइंडर कितना, 1 होगा। 1. अब 1. 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1. 1. 1, और रिमाइंडर कितना आएगा, 1. 1. 1 आएगा। 1. तो देखिए 15 को अगर आपको लिखना है बाइनरी में तो हम क्या लिखेंगे, 15 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो 1 1 1 1। अब पूछोगे ये कैसे हो गया सर, ये कैसे होता है, तो आप लोगों को याद हो 2 की टेबल पढ़ी होगी आप लोगों ने, नहीं, 2 का टेबल पढ़ा होगा ना। Sir. Yes, sir. एक छोटा सा फिगर आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा फिगर आपको दिखाएं, हाँ। इंसर्ट टेबल, एक आपको इंसर्ट टेबल ले लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स हमें चाहिए 10 चाहिए, रो तो 3 भी काफ़ी है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2 टू द पावर, अगर 2 टू द पावर आप 0 कर देते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, Sir, 0. समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू, 0. 0. नाम बताना जरा अपना, अभी बनाते हैं आपको हीरो, है। समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू, सर जो होता है वही होगा, जो नहीं होता है होगा. वही होता है। 12 क्लास के बच्चे बोल गए क्या, हैं। 1. हाँ अब कौन बोला, कौन बोला, नाम भी बता दो अब। देखो मेरे सामने तो कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे सामने तो बस यही चल रहा है, 1 2 3 4 चल रहा है, जल्दी बता दो नाम। अरे नाम नहीं बताना, मत बताओ, जाओ, आपके नाम का प्राइस रुक जाएगा, आपके नाम से अभी प्राइस आ रहा था तो रुक जाएगा, जल्दी नाम बता दो। कितना डरते हैं हमारे बच्चे हैं। अरे गलत हो जाए तो क्या फांसी की सजा सुना दी जाएगी, कि उम्र कैद, ये काला पानी क्या। देखिए नंबर सिस्टम हमारा कहता है समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, समथिंग टू द पावर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. देखो पावर देने का क्या मतलब होता है, पावर देने का मतलब होता है कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ बाय दैट टाइम्स, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ बाय दैट टाइम। जैसे 0 दिया, नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, किसी से नहीं, कितनी बार करना है, नंबर को उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, एक भी बार नहीं कर रहे हैं, तो नंबर जितना है उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब नंबर को क्या किया, 2 को कितनी बार गुना किया,
एक बार, खुद से कितनी बार, 2 को, बस यही है। अब 2 को कितनी बार गुना किया, 2 खुद से ही 2 बार गुना किया ना, तो रिजल्ट हमारा क्या आया, यहाँ का मतलब हो गया 2 टू द पावर 1 का वैल्यू कितना हो गया 1, 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4। 4 अब 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब हो गया, जितना ही वैल्यू है 8 उससे 2 बढ़ा दें, यही ना, जितना प्रीवियस वैल्यू उससे 2 बढ़ा देंगे ना, ठीक है, यही है ना, पावर 3 है, पावर 4 है, तो पावर, पावर 1 का 2 होगा ना। हाँ क्या बोला, जैसे देखो यहाँ पे क्या, अच्छा टू, सॉरी 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 सॉरी, गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 2 टू पावर 3 है ना, तो 4 पे कितना अंतर होगा, इससे 2 और सही, अरे इसको लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1, नहीं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, यस सर 2 यस सर 2 सॉरी 2 फिर इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो रहा है, एक एक बार बढ़ते जा रहा है ना, यस सर तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2 टू पावर 3, अब इस पे एक और, तो 8 का 2 गुना हो गया 16, अब ये कितना हो गया 64 ये कितना होगा इसके बाद, कितना होगा जल्दी बताओ, बताओ, अरे 64 इंटू 2 कितना होगा, 128 और 128 इंटू 2 कितना होगा, दिस इज 256, अब 256 इंटू 2 कितना होगा 512, अब 512 कितना हो जाएगा 10 2 4। अब आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा कहता है 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, एक MB में कितने बाइट, 1000 1000 नहीं होता है बेटा, दिस इज 1024 10 2 4 यही होता है, ठीक है, ठीक ना, 1 GB का मतलब कितना होता है, 1 GB का मतलब कितना होता है 1024 1024 MB, नहीं, और यस सर 1 TB का मतलब क्या होता है 1024 GB 1024 GB। तो ये 1024 का कॉम्बिनेशन समझ रहे हो आप लोग, ये पूरा बाइनरी सिस्टम का खेल है, ये पूरा खेल जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का है, बात समझ में आ रही है, यस यस सर सर तो ये हमेशा 10 1024 चल रहा है, क्योंकि 2 टू द पावर 0 इज 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, चलो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत तो नहीं है, ये समझ गए ना आप लोग, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं यस है। यस सर अब देखिए जब हमने लिखा 15, 15 को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया गया, तो बाइनरी डिजिट में 15 को ऐड करो, ऐड करो क्या होता है, तो यहाँ पर से ऐड करना शुरू कीजिए, देखिए 15 किसके बीच में लाई कर रहा है, हमारे पास कौन कौन सा नंबर है 16 8, 15 से नजदीक वाला नंबर कौन है, 15 अगर होगा तो यही होगा ना, 8 और 16 के बीच में, नहीं, यस सर यस सर अगर 16 लेंगे तो 15 हो पाएगा हमारा, नहीं ना, 16 तो 15 से ज्यादा हो गया, तो जो इसके जस्ट बड़ा वाला है उससे कम वाला लेना है, नहीं, तो अब 15 कैलकुलेट कीजिए, 15 में तो पहले ये ले लो कि हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक, तो इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स कैसे करते थे, जीरो का मतलब क्या होता है, 1 जीरो का मतलब क्या होता है, सर 0 रहते हैं जीरो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब मैंने इसको काउंट किया है, मतलब इसकी वैल्यू को काउंट किया है, तो इसका मतलब ट्रू कर देते हैं कि मैंने इसकी वैल्यू को काउंट किया है, ठीक है, इसको ट्रू कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब फिर 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7 7, तो 7 और 7 किसके बीच है, 8 और 4 के बीच, यस सर तो ठीक है, अब 4 ले सकते हैं, 4 काउंट कर सकते सर हैं, यस सर तो अगर जीरो और वैल्यू हमें क्या करना है, 4 को भी हमने 1 कर दिया, ठीक है, ठीक है, इसी तरह 8 4 यस सर 12 कितने बच गए हमारे पास, 3 बच गए, इसका मतलब है हम 2 भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, यस यस सर सर अरे 15 को हमें काउंट करना है तो कैसे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 नहीं कर सकते हैं, नहीं, अब कितना बच गया 8 यस 4 सर 8 की वैल्यू ट्रू है, 4 की वैल्यू ट्रू है, 2 की वैल्यू ट्रू है, तो अब कितना है, कितना बच गया 1,
है ना? यस सर। अब इस वाले को मत देखो, इस वाले को मत देखो, ऊपर वाले को देखो कितना हुआ। काउंट करो तो कितना हो गया, काउंट करो तो। 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 हो गया। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो अब देखो बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, देख रहे हो उसको। पहले हमने क्या किया, ऐसे कर रहे थे ना, अब ऐसे कर रहे हैं। मान लो 10 हमें लिखना है, तो कोई बताएगा 10 कैसे लिखेंगे हम। हमेशा याद रखना, जिस नंबर को काउंट करेंगे ना वहां पे 1 लिखेंगे, जिस नंबर को काउंट नहीं करेंगे उसको 0 लिख देंगे। ठीक है, जैसे चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हमें लिखना है 10, 10 लिखना है ना, तो 10 में क्या क्या आता है, 10 किसके बीच आएगा पहले ये देखो लो। सर 16 और 18। 16 and 18। 8 काउंट काउंट करेंगे कि नहीं, 8 काउंट करेंगे ना। यस सर। 8 काउंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 4 को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। No, sir. क्यों, अगर 4 ऐड किया तो 12 हो जाएगा हमारा वैल्यू, नहीं ना, यही होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को काउंट नहीं करना है, काउंट जिसको नहीं करना है उसको 0 कर देंगे। भाई तुम्हारी वैल्यू फॉल्स है, तुम्हें काउंट करना ही नहीं है हमें। ठीक, अब 2 को काउंट करेंगे, यस सर। 2 को काउंट करेंगे कि तुम्हारी वैल्यू सही है, तुम्हारी वैल्यू को हम काउंट करेंगे इसलिए 1 लिख दिया। अब 1 को काउंट करेंगे क्या, No, sir. दिस इज 0। ठीक है, अब देखिए ये 1010 कैसे आया, यहाँ पे ये समझिए आप। 10 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, हमारी वैल्यू कितनी आई, 5 आई, और रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, आया ना। ठीक है, Yes. अब 5 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 2 2 आई, और रिमाइंडर कितना आया, 1. 1. 1। अब 2 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आई, 0. 1, रिमाइंडर कितना आया, 0। अब इसको चेक कीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो 1010 आ रहा है, 1010 आ गया। यस सर। समझ गए ना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। Yes, sir. जिसको आप लोग ट्रिकी मेथड कहते हो या शॉर्टकट मेथड कहते हो, तो यही होता है, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसी तरह एक बार करके देखते हैं हम लोग, कितना को ज्यादा नहीं, 17 को करके देखते हैं। ठीक है, 17। अब मुझे बताइए 17 लेना हो तो कहाँ कहाँ जाएंगे हम, 32 और 16। 32 और 16 के बीच में जाएंगे। चलो आपकी बात मान ली। ठीक है, अब 17 को एक बार तो पहले यहां से कर लेते हैं। 17 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा पहले तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 8, और रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, 8 को डिवाइड किया 2 से, कितना वैल्यू आया, 4 4. रिमाइंडर कितना आया, 0। 0। ओके, अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं यहाँ पे। 4 को कितना डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 वैल्यू कितना आया हमारे पास, 2. रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 0। 0। 0. अब 2 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितना आएगा हमारा, 0. अच्छा 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 1, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 0 0 0 1 तो ठीक होगा। देखते हैं, अगर आपको इधर से लिखना है, इस साइड से लिखना है, आपको राइट साइड से लिखना है, तो क्या वैल्यू लिखेंगे, ऐसे करके 1 1 कर ऐसे लिख के देखते हैं। चलो आप लोग बोलो क्या क्या लिखना है, 1 के बाद क्या लिखना है, 1 के बाद क्या लिखना है, 0. फिर क्या लिखना है, 0. फिर कितना लिखना है, 0. फिर कितना लिखना है, 0। अरे कितनी बार 0 लिखोगे, Sir. यहाँ से देखो ना, 1 लिखा फिर 0 0 0 फिर 1 हो गया, तो 1 0 0 0 1 हो गया। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब काउंट कीजिए तो कितना हो गया हमारा, बाकी सब की वैल्यू फॉल्स है, किस किस की वैल्यू ट्रू है, 16, और किसकी वैल्यू फॉल्स ट्रू है, और किसकी वैल्यू Or ट्रू है, 1. 1। तो कितना हो गया 1. टोटल आपका, 17. 17। समझ गए, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को। No, sir. नो सर। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक आप लोग कर लीजिए खुद से, एक आप लोग कर लीजिए, तो एक दूं आप लोगों के लिए। Yes, sir. तो एक काम करते हैं,
हम ना ऐसा करते हैं 23 को करते हैं, 23 को, ठीक है, 23 को करके देखते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि हमें वैल्यू कहाँ से लेनी है, किसके किसके बीच लेनी है, वैल्यू किसके किसके बीच होगी, 23 है हमारा तो सर 32 और 62 के बीच, 32 और 16 के बीच, मतलब 32 की तरफ तो देखना ही नहीं है, जाना ही नहीं है उधर, नहीं। तो चलिए 16 की वैल्यू को ट्रू Yes, करेंगे, sir. 16 की वैल्यू को ट्रू करेंगे, यस सर चलिए 16 को ट्रू कर दिया। अब कितना बचा हमारे पास, यस सर यस सर 23 में से 7 माइनस हो गया तो कितना बचा हमारे पास, 23 में से 16 माइनस हो गया, सॉरी 23 में से 16 माइनस हो गया तो कितना बच गया, कोई चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहा है क्या, Sir, 7. सर 7 अच्छा 7 बच गया, तो 7 बच गया तो 8 लिखेंगे हम क्या, नो सर No, sir. 8 को बोल देंगे भाई तुम्हारी वैल्यू ना फॉल्स है, तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे। अब Zero कितना बचा जाएगा हमारे उधर. पास, 7 बचा है ना, तो 4 को Yes, लिखना है या नहीं यस लिखना, सर Sir, true. यस सर 4 को चलो 4 का काम लिखेंगे. होगा भाई, इसका काम है, फिर 2 लिखेंगे, Yes, sir. Yes, sir. 2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे, 1 लिखेंगे, Yes, sir. ठीक है। अब चेक करते हैं हमारी वैल्यू क्या आ गई, 10111। अब 23 को करते हैं, एक बार करके देखते हैं, ठीक है, 23 को एक बार करके देखते हैं, करके देख लें, यस सर ठीक है। यस सर 23 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 1 आएगा, ठीक है, Yes, sir. वैल्यू कितनी आएगी, 12. 12 आएगा, Yes, sir. No, sir. कितनी पिटाई खाओगे, Sir, 16 आएगा. 23 को 16 कैसे आएगा, नहीं, एक मिनट सर. सर सही है. 11 आएगा 11 आएगा. यस सर 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आएगा, 11 आएगा, और रिमाइंडर कितना 1 आएगा, ठीक है। जब 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, कितना आएगा, 5, रिमाइंडर कितना आएगा, 5. 1. 1, 5 को 2 से One. डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 2. 2, रिमाइंडर कितना Two. आएगा, 1. जब 2 को 2 से One. डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1. 1 आएगी, Sir. और 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0. 0। अब देखिए यहाँ से देखिए, अगर लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो 1 0 1 1 1 है, 1 0 1 1 1, अगर राइट टू लेफ्ट देखेंगे यस सर 1 1 1 0 1, ठीक है, कंप्लीट, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, No, sir. चलो और क्लियर, चलिए। यस तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, एंड ए एंड बी इज इक्वल टू ट्रू। अब 10 की वैल्यू क्या है और 20 की वैल्यू क्या है, इस चीज को देखते हैं, एक बार देख लेते हैं 10 की वैल्यू और 20 की वैल्यू। चलो लास्ट फाइनल देखते हैं, यहाँ पर 10 की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर इसके नीचे 20 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ नीचे हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू ट्रू है कि नहीं। 10 के लिए किसको किसको ऐड करना पड़ेगा, जल्दी बताओ फटाफट। Sir, 16 और 8 के बीच में. 18 तो कितना हो गया, तो 16 और 18 के बीच में किसको लेंगे, 8 को लेंगे, 8 की वैल्यू को लेंगे. और उसके बाद क्या लेंगे, 10 में से क्या बचा, 5 Sir, 2 लेंगे. 10 में से 8 गया तो कितना बच गया, 2. तो 4 लेंगे क्या, 2 4 की वैल्यू Yes, कौन हो sir. जाएगी, Sir, 0 जाएगी. यस सर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू Sir, 1. 1, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो Yes, sir. ये तो हो गया आपका 10, ये तो आपका 10 हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 10। अब 20 को करते हैं, 20 कैसे होगा, Sir, 32 और 16 के बीच में. 32 और 16 के बीच में किसको लेंगे, Sir, 16 को. 16 को लेंगे, तो 16 ट्रू होगा, Sir, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू. 16 हो जाएगा। अब 8 लेना है, 8 Yes, लेना sir. है? No, sir. No, Sir, sir. 0 लगेगा. चलो 8 Sir, 4 लेंगे. 4 लेंगे, 4 की वैल्यू Sir, कितनी 4 हो लेंगे. जाएगी, Yes, sir. अब 2 की वैल्यू लेंगे, 1 हो जाएगी. 2 की No, वैल्यू sir. 0. 0, फिर No, 1 sir. को लेना है, और सर No, sir. 0. 0। अब मुझे ये बताइए कि जब 0 में 0 को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा, Sir, 0. 0। 1 में 0 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1. 1। अब 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1. ठीक है, 1 में 0 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1. 1। अब 1 में
यहाँ पे क्या है 1, अगर ये नहीं है कुछ तो इसका मतलब 0 है, यही ना। तो 0 Yes, में sir. 1 को ऐड किया Yes, तो sir. कितना आया। Sir, one. अब इसकी वैल्यू को काउंट कीजिए कितना हुआ। 16, One. 8 1 24, 1 4 28, 2 30, कितना आ गया। Sir, 30. 30 आ गया ना। 30. अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जब आप देखेंगे, अब यहाँ कह रहा है ए एंड बी की वैल्यू को लो। ए को बी के साथ ऐड किया तो कितना आ गया हमारी वैल्यू। तो नॉन जीरो वैल्यू है क्या, ये 30. नॉन जीरो वैल्यू है क्या। ए एंड बी हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ए एंड बी हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। सर ट्रू है। अगर नॉन जीरो वैल्यू, अगर जीरो रहता, यहाँ पे सारा सारा जीरो हो जाता ना, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाता। लेकिन सारा का सारा जीरो है क्या। No, नो sir. सर। यहाँ पे 1 वैल्यू है ना, इट मीन टू से ये यस नॉन सर। जीरो वैल्यू। ठीक Okay. है, समझ में आ गया। अब ए और बी, ए और बी क्या कहता है, अरे ए और बी हमारा क्या कहता है, दोनों में से कोई एक भी, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक बड़ा सा मिस्टेक, बड़ा सा मिस्टेक था, सॉरी। ये क्या कहता है एंड में, सॉरी, एंड में क्या कहता है, एंड का जो डिफरेंस, एंड में ये कहता है दोनों में से कोई एक भी, सॉरी, दोनों में से कोई एक भी आपका अगर नॉन जीरो वैल्यू रहा तो ये आपका एंड, सॉरी ये आपका ना और का है। ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज लॉजिकल और ऑपरेटर। दोनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो रहा तो ये आपका नॉन जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, और ठीक है, समझ रहे हो। यस सर। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से दोनों को ट्रू होना होना पड़ता है तभी आपका ट्रू होगा। ठीक है, सॉरी, तो ये आपका मीन्स दोनों की वैल्यू अगर 1 होगी तभी ट्रू होगा। हाँ, ये एंड ऑपरेटर कहता है, ये एंड ऑपरेटर कहता है आपका। और ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों, तो ये जो हम लोगों ने काम किया ये और ऑपरेटर के लिए। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये और ऑपरेटर के लिए। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर के लिए करके देखते हैं इसको। एंड ऑपरेटर ये क्या कहता है, दोनों में से दोनों की वैल्यू अगर ट्रू होगी तभी ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, यहां पर ले लो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। ठीक है, और हम काउंट क्या कर रहे हैं, सॉरी, और हम क्या काउंट क्या कर रहे हैं, a और b। ठीक है, a और b, a और b को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। हम काउंट कर रहे हैं ए और बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। अब ए और, यहाँ पर ए और बी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ए एंड बी क्या कहता है हमारा, ए एंड बी क्या कहता है, दोनों में से दोनों की वैल्यू जब तक ट्रू ना होगी तब तक हमारा वैल्यू ट्रू ना होगा। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू कितने आ जाएगी, यहाँ पर आप देखें ए और बी कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। दोनों में से कोई भी अगर आपका नॉन जीरो रहेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने अभी कर लिया दैट इज ट्रू एंड दैट इज और ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर का दोनों में से दोनों को जब तक हम ट्रू नहीं करेंगे, ये तो आपका ए और बी का हो गया, ए और बी। ठीक है, अब ए एंड बी करते हैं इसके नीचे, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी क्या कहता है, अब जीरो में जीरो कितना, अगर दोनों वैल्यू, इस चीज को तो छोड़ दो, इस चीज को हटा दें, अभी इस चीज को हाइड कर दें, इस चीज को हटा देते हैं। ठीक ना, चलो एक काम करते हैं, इस चीज को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना, जीरो जीरो कितना हो जाएगा हमारा, 0 और 1 जीरो कितना हो जाएगा, 1. 1 जीरो जीरो हो जाएगा बेटा। ये एंड ऑपरेटर है, एंड है, ये एंड है। दोनों में से दोनों अगर जब ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, तो 1 जीरो कितना आ यस जाएगा, सर। 1 जीरो कितना हो जाएगा, 0 जीरो हो जाएगा। 0 1 कितना हो जाएगा,
0 सर ये 1 1 है, कहाँ ये 1 1 है ना? 10 कहाँ 11 है? आपने ऊपर वाला देख लिया, नीचे बता रहे हो सर। 10 की वैल्यू कितनी है? 8 to 10, ठीक है। और 20 की वैल्यू ली थी हमने 16 और 4, ठीक तो है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सर उन्होंने ऊपर वाला देख लिया 1 1। नहीं, हाँ सर। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, दोनों ये आपका यहाँ पर देखो ना, इस दोनों को देखो ना, इस दोनों को देखो, ठीक है। तो 0 0 कितना हो गया आपका? 0 0 0 आपका 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, एंड 0 1 0 0। तो ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स होनी चाहिए। लॉजिकल, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। नॉन जीरो वैल्यू है। अच्छा, बोथ द ऑपरेंड्स, यहाँ पे 10 भी आपका नॉन जीरो है, 20 भी नॉन जीरो है। अगर आपका ये जीरो, सॉरी, ऑपरेंड्स आपका 10 और 20 में ले रहा है, 10 एंड 20, ठीक है। सर अगर इनको अलग अलग करके ले रहे हैं क्या 10 और 20 अलग करके ले रहे हैं या फिर ऐड करके ले रहे हैं? इनको 10 अलग ले रहे हैं और 20 अलग ले रहे हैं, ठीक है। और मैंने जो आप लोगों को बताया है, ये तो आपका लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, 10 एंड 20 को डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे बिट में इसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो बिट वाइज ऑपरेटर में आपका ऐसा होता है, ठीक है। अरे एक- ये क्या किया हमने, जो इसकी वैल्यू थी इसको बिट में कन्वर्ट किया। इस चीज को किस में कन्वर्ट किया? बिट में कन्वर्ट किया, राइट। जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इसको किस में कन्वर्ट किया? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया? नहीं, ये अगर बिटवाइज एंड रहता है, जैसे आपका बिटवाइज एंड रहता है ए एंड बी, एक सेकेंड रुक जाओ, एक मिनट होल्ड करना। ओके, so this is logical or operator says that if the value of operand 1 and value of operand 2 both are non-zero value, then it become false. ओके, जैसे यहाँ पे, यहाँ जैसे और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से दोनों अगर फॉल्स है तब तो ये फॉल्स हो जाएगा। जीरो का मतलब आपका फॉल्स हो गया, सॉरी, जीरो का मतलब आपका फॉल्स हो गया। ओके, अब दूसरा क्या करता है, अगर दोनों में से कोई एक भी आपका ट्रू है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। दिस इज और ऑपरेटर, ओके, ठीक है। अब ये क्या, देखिए 10 में से एक, 10 में से एक तो आपका नॉन जीरो वैल्यू है ना, तो इसका मतलब ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और फिर ये क्या कहता है, अगर दोनों में से दोनों ही ट्रू हैं तब तो ट्रू होना ही होना है, नहीं। दिस इज यस लॉजिकल सर। और ऑपरेटर। बट लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या कहता है आपका, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपका कहता है कि अगर दोनों की वैल्यू जीरो है तो ये आपका डेफिनेटली जीरो ही होगा, राइट। जीरो का मतलब हो गया कि फॉल्स है आपका, राइट। अब दोनों में से कोई एक भी अगर आपका ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स ही होगी, ठीक है, ठीक है। यस सर। यहाँ पर भी क्या है, एक तो जीरो, एक तो नॉन जीरो है लेकिन दूसरा जीरो है, तो इसका वैल्यू जीरो ही होगा, दैट इज, जीरो फॉल्स। ठीक है। अब क्या कहता है, दोनों का दोनों आपका ट्रू है तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, 1 and 2। ट्रू, ठीक है। दिस इज एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपका और ऑपरेटर हो गया, आपका ये एंड ऑपरेटर हो गया। अब यहाँ जैसे ए और बी की वैल्यू को काउंट करते हैं, ए और बी की वैल्यू को काउंट कर, ये आपका बिटवाइज में कन्वर्ट करने के बाद हुआ। अगर मैं यहाँ पर काउंट करने, अब चलते हैं थोड़ा सा बुक की तरफ चलते हैं। बुक की तरफ जब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप एंड ऑपरेटर एंड ये ऑपरेटर तो हो गया आपका, फिर काउंट करते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। ये तो लॉजिकल ऑपरेटर, आप दोनों तरफ की ऑपरेटर की वैल्यू को देखते हैं।
called logical AND operator if both the operands are non-zero then condition become true. ये आपका और ऑपरेटर है called logical or operator if any of the two operands are non-zero then condition become true. दोनों साइड में से कोई एक नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये आपका नॉट ऑपरेटर कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट इट्स ऑपरेंड इफ ए कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स। क्या कहता है, अगर आपका ए एंड बी ट्रू है तो अगर उसके सामने आपका नॉट ऑपरेटर लग गया तो उसको फॉल्स कर देगा। अगर ए एंड बी की वैल्यू फॉल्स है तो इसको नॉट लग के क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स कर देगा, मतलब इसको अगर ये फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा, राइट, ठीक है। दिस इज योर लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम क्या, सर प्लीज रिपीट। लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहता है कि दो ऑपरेंड होते हैं ना ए और बी, जैसे यहाँ पे दो ऑपरेंड है ए एंड बी, अगर दोनों की वैल्यू नॉन जीरो है, नॉन जीरो का क्या मतलब है, जीरो नहीं होंगे, तो क्या होगा, ऑपरेंड आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका ट्रू होगा, ठीक है। दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा, मतलब दोनों की तरफ वन वन होना पड़ेगा, दोनों की तरफ ट्रू वैल्यू होगा तभी ट्रू आएगा आपका, ठीक है। Yes, sir. अब और क्या करता है, Yes, दोनों sir. में से किसी की तरफ भी ट्रू हो गया, ए और बी दोनों में से किसी की वैल्यू भी ट्रू हो गई तो वो आपका आप रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। यस सर। और ओके सर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर कहता है ए एंड बी के साथ अगर मुझे लगा दीजिएगा ए एंड बी की वैल्यू ट्रू है तो मैं उसको फॉल्स बना दूंगा, अगर ए एंड बी वैल्यू की वैल्यू फॉल्स है तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा, मतलब जो भी ए एंड बी करेगा मैं उसके रिवर्स कर दूंगा। तो सर ये कैसे होगा? हाँ, जैसे देखो ये होगा कैसे? नॉट, यही तो लॉजिकल, लॉजिकल तो यही है ना कि अगर जैसे मान लो ए और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 और 20 की, जब 10 एंड 20 तो इसकी वैल्यू ट्रू हो गई, 10 भी नॉन जीरो है 20 भी नॉन जीरो है, ठीक है। यस सर। 10 की वैल्यू भी नॉन जीरो है 20 की वैल्यू भी नॉन जीरो है, तो ए एंड बी की वैल्यू ट्रू हो गई। अब यहाँ पे जैसे नॉट लगा देंगे तो क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा। जैसे नहीं पढ़ते हो, जैसे आप लोगों ने, अरे ये नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं पढ़ा है, पढ़ा है सर। Yes, sir. सिनोनिम्स एंटोनिम्स की पढ़ाई की है ना आप लोगों ने, जैसे नहीं करते हैं, जैसे यस सर। फर्स्ट का लास्ट हो जाता है, उसी तरह ये क्या करता है, ट्रू को ये फॉल्स कर देता है, अच्छा सर। ठीक है। अब अगर ये वाला ए और बी अगर ट्रू है आपका तो अगर उसमें ये लगा दोगे तो ये आपका फॉल्स कर देगा, ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो हमारा मेन जो हम लोगों ने अभी उतना कैलकुलेशन किया था उस कैलकुलेशन का इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। द बिटवाइज ऑपरेटर, देयर आर फॉलोइंग बिटवाइज ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, एज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 2 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स 3, देन called bitwise AND operator, it performs a boolean AND operation on each bit of its integer। जो अभी हम लोगों ने पढ़ाई की थी, जो हम लोग boolean वैल्यू चेक कर रहे थे, जो सॉरी बाइनरी नंबर हम लोग चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे आप बिटवाइज ऑपरेटर को देखते हैं, कॉल्ड बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इट परफॉर्म्स ए बूलियन एंड ऑपरेशन ऑन ईच बिट ऑफ इट्स इंटीजर आर्गुमेंट। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, बिट पे कन्वर्ट किया, जैसे a एंड b इज इक्वल इज 2, अब देखो 2 एंड 3, 2 एंड 3 देख रहे हो यहाँ पे 2 एंड 3, तो इसकी वैल्यू 2 कैसे आ गई, इसकी वैल्यू 2 कैसे आ गई, तो अब आपको हेल्प मिलेगी इस टेबल से। जब यहाँ पे आप 2 एंड 3 को काउंट करने जाएंगे तो देखो 2 आपका 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, अभी ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है। तो कहाँ गया, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना जरा, 2 लिखना है ना हमें, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, Sir, 1. सर 1। 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी और यहाँ क्या आ जाएगा, 0। और 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, Sir, 2 पे 1 आएगा और 1 पे 0। और 2 से 0. 2 पे ना ये आएगा, 3 पे तो दोनों पे 1 1 आएगा, नहीं, यस सर। तो अब दोनों को ऐड 2 और करो, 1 दोनों पे। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, जब दोनों को ऐड करते हैं, अगर दोनों में से कोई भी आपका कौन सा ऑपरेटर, पहले ऑपरेटर देखो कौन सा है, ऑपरेटर चेक करो, एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर हमारा क्या करता है, दोनों में से कोई भी आपका, दोनों में से दोनों को जीरो, दोनों को वैल्यू ट्रू होना पड़ेगा तभी 1 ट्रू होगा, नहीं ये कहता है ना। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
फॉल्स हो जाएगी ना। प्लीज बेटा, जिसकी माइक से आप पीछे से आवाज आ रही है माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, अब क्या कहता है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एंड ऑपरेटर है, याद रखना। एंड ऑपरेटर देखो ना, यहाँ क्या कहता है एंड ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर ये कहता है दोनों में से अगर किसी एक की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है? क्या रिजल्ट आ रहा है? सर फॉल्स आ रहा है ना। ट्रू कब होगा? जब दोनों का दोनों ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। जब ये दोनों, एक 0 है एक 1 है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी? सर 0 0 आएगी। और अगर दोनों ट्रू है तो क्या आएगा? 1 अब लॉजिकली देखो, आप नॉर्मली आप 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा? 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और यहाँ क्या कर रहा है? a एंड b इज 2। जब a और b को ऐड किया तो हमारा कितना आया? 2, बिकॉज दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर। ये हमारी जो वैल्यू आई, ये बिटवाइज की वैल्यू आई a एंड b। दिस इज कॉल्ड योर बिटवाइज ऑपरेटर a एंड b। सॉरी, ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका a एंड b है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे, अब आपको आंसर मिल गया ना, a और b के वैल्यू 2 कैसे आ गई? क्योंकि ये आपका आंसर क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? इसका क्या मतलब हो गया? 2 हो गया ना। ठीक है, ठीक है, क्या समझ में नहीं आया? नो सर, क्या हुआ? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? सर समझ नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया बताओ? सर मुझे नहीं आया। नाम? मुझे भी। अच्छा, समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले क्या करेंगे, a और b के वैल्यू देखो। a की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है? 3 है। a को कन्वर्ट किया किस में? a को 0 1 में कन्वर्ट किया। यस सर। a को 0 1 में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 1 0। a को अगर फ्रेश समझो, बिल्कुल फ्रेश, यहाँ पे कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। मैंने एक टेबल इंसर्ट किया, यहाँ पे वैल्यू हमारी है अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी वैल्यू a की वैल्यू है और b की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? यस सर 3 है, और b की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब 3 को जब आप, इन सब चीजों को हटा दो, इन सब चीजों को हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ी सर देर। एक ही 2 थी ना। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू, हाँ, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। तो a की वैल्यू को कैसे लिखेंगे बिटवाइज में? बिटवाइज में कैसे लिखेंगे a की वैल्यू को, बताओ, बोलो बोलो। क्या सर? a की वैल्यू को बिटवाइज में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है और b इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको चेंज कीजिए, 2 को कैसे लिखेंगे? सर इसको पहले 0 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा वैल्यू इसका? सर ये 2 के उसमें आएगी और 1 हो जाएगी। तो 2 पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यही ना। यस सर। अब 3 की वैल्यू क्या आएगी? सर 2 पे भी 1 आएगा और 1 पे भी 1 आएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बताइए कि जब क्या कहता है, a एंड b कहता है हमारा कि जब दोनों में से दोनों ट्रू रहेगा तभी उसकी वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, है ना। यस सर। यहाँ दोनों में से एक की वैल्यू ट्रू है, एक की वैल्यू फॉल्स है, तो क्या आंसर आएगा हमारा? फॉल्स होगा 0 फॉल्स होगा, मतलब 0 होगा। अब ये कहता है कि दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या वैल्यू आएगा हमारा? होगी और 1 आएगी। 1 तो अब 1 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना आया? 2 आया ना। 1 0 का मतलब यस 2 ही है सर। ना। ठीक है, यस सर तो a एंड b इज इक्वल टू कितना? 2 हो गया। यस सर।
तो ये आपका बिट वाइज ऑपरेटर है। क्या करते हैं हम, जो भी फिगर होता है उसको बिट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, ये एक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ए और बी को देखते हैं। ए और बी को देखें, ए और बी को देखते हैं। ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, सोचिए आप लोग। 0 1 में से कोई भी ट्रू है तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, ट्रू होगा, 1 होगा, 1। अब इन दोनों में से कोई एक ट्रू तो है ही, तो फिर कितना हो जाएगा, इसमें भी 1 नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 3। क्लियर। अब ये Yes, क्या करता sir. है, अगर मुझे ये नॉट क्या करता है कि अगर मुझे ना ए एंड बी के बीच में लगा देंगे आप, ए एंड बी की वैल्यू अगर ट्रू है और मुझे यहाँ लगा देंगे, तो क्या करूंगा मैं, जो वैल्यू ट्रू है ना उसको फॉल्स करके रख देंगे। ठीक है, अगर ये 1 है तो क्या करेगा, सर इसे ट्रू कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर एंड, ओ सॉरी, और ऑपरेटर है ये। ठीक है, ये ए एंड, सॉरी, चलो ये आपका यहाँ तक क्लियर है, ये हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया। ठीक है, ये और हो गया आपका। ठीक है, तो ए एंड बी 2 हो गया और ए और बी आपका 2 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब एक Yes, छोटा sir. सा और है, एक छोटा सा और है, करें आज की ना करें, सर करवा दो। कर ही लेते हैं। कर लेते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं ना, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू है ना, हमारा जो भी वैल्यू है वो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। जैसे हमने यहाँ कुछ भी वैल्यू लिखा ना, वो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, राइट ऑपरेटर क्या कर जाता है कि एक बिट आपका राइट शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लो छोटी सी वैल्यू है हमारी, क्या सर? सर एक नंबर बढ़ जाएगा और एक नंबर घट जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या कहता है, मैं जब किसी पे लग जाऊंगा ना तो उसको एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, और ये क्या कहता है कि मैं जब किसी के साथ लग जाऊंगा तो उसको क्या करूंगा, एक बिट राइट शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब एक बिट लेफ्ट, एक घर आप मतलब यहाँ पे मान लो एक घर लेफ्ट हो जाएगा, ये एक घर राइट हो जाएगा। मान लो मैंने ए एंड बी पे क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है ना। अब देखते हैं एक बार की वैल्यू, एक बार अगर मान लो कि यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या है, हाँ, चलो इसको क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं एक बार। तो मतलब एक घर जो यहाँ पे है ना इसको 0 कर देंगे और बाकी इसको क्या कर देंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। एक घर पीछे शिफ्ट कर गया ना, इसको हटा दो थोड़ी देर, ये एक घर लेफ्ट शिफ्ट कर गया ना, कर गया। यस। अब इसकी वैल्यू पहले पहले क्या थी वैल्यू इसकी, पहले वैल्यू इसकी थी 2, सॉरी 2 पर पावर 1 2, और ये एक 3, 3 वैल्यू थी नहीं, यही थी ना। यस सर। अब कितना हो गया देखो तो, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 1, तो कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो एक शिफ्ट किया तो पहले 3 था, 6 हो गया। अब एक शिफ्ट और करके देखते हैं, एक शिफ्ट करने का मतलब है यहाँ से वैल्यू हट जाएगी और यहाँ पे वैल्यू आपकी लग जाएगी। अब एक शिफ्ट और किया, अब कितना वैल्यू हो गया, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 2, कितना हो 8 और 4 12। 12। ये क्या देख रहे हो, लेफ्ट जब शिफ्ट हो रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ना। यस सर। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि जो भी नंबर है उसको डबल मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है नंबर। ठीक है, समझ रहे हो, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, अब यस इसी को सर। मान लो राइट शिफ्ट कर रहे हैं, कितना वैल्यू है हमारा 12, इसको राइट शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ये तो यहाँ रहेगा, ये आपका हट के यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पहले 12 था, अब कितना हो गया, हो जाएगा 6, अब 6 हो जाएगा। अब फिर इसको एक बार, इस बार फिर इसको राइट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 3। अब क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब हो गया, इसको अगर मैं लिख दूं कि इसका ये मतलब हो गया कि डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ में आ गया, जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट शिफ्ट क्या मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है यहाँ पे, यस सर। ठीक है,
ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर था और ये आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। चलो यहाँ पे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्यों? यस सर। अच्छा, अब जो है ना ये वाला ऑपरेटर मैं आपको नेक्स्ट डे क्लास लूंगा ना, तो नेक्स्ट डे की क्लास में यस थोड़ा सर। सा इन ऑपरेटर्स को देख लेंगे और इन ऑपरेटर्स को रन करा के भी आपके इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में रन करा के भी आपको दिखा देंगे, ठीक है? क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया नहीं? यस सर। यस सर। जिन बच्चों को समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार इसको घर पे जरूर करेंगे। और आप लोगों का होमवर्क जो है कि क्या, मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, कि आपको 10 नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है और 10 नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है? ये टेबल तो आपने देख लिया ना? Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है, क्लियर? तो कैसा रहा आज का क्लास आप लोगों का? सर अच्छा था। तो कितने बच्चों को समझ में नहीं आया बताइए जरा? बाकी सबको समझ में आया? अच्छा, कितने बच्चों को Yes, समझ में आया? sir. क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करके मैसेज कर दो। यस सर। क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करके मैसेज कर दो, देख लो एक बार, फिर मुझे भी तो पता चले कितने बच्चे समझ गए। ऑल क्लियर, 2 ही बच्चे का, बाकी को समझ में नहीं आया? बाकी को समझ में नहीं आया? अच्छा, 3 4 धीरे धीरे टाइप कर रहे हैं, नहीं? चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, हाँ? और एक बात और, कि जैसे चैनल पे बना हुआ है ना यूट्यूब वाले पे, तो वहां पे भी जाके आप देख लोगे, यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब, एक सेकंड में आप लोगों को दिखा दूं कि एक अलग से सेशन ही बना हुआ है, इस सेशन को भी मैं ऐड कर दूंगा वहां पे। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आप लोगों को ना? ओके, नो सर। नो सर, स्क्रीन नहीं आ पा रही। चलो कोई बात नहीं, अब वो आ जाएगी। एक चीज और है, जैसे चैनल को सर्च करना है ना, मुझे सर्च करना है तो आप कांटेक्ट नंबर यहाँ पे डालोगे तो आप कांटेक्ट नंबर से भी मुझे सर्च कर सकते हो, सीधा कांटेक्ट नंबर आपका यहाँ पे फ्लैश करेगा, ठीक है? ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ठीक है? ये वाला एक वीडियो है, आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये आप लोगों को बताएगा कन्वर्जन कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, एक बार यहाँ से भी देख लीजिएगा। और ये वीडियो भी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, गुड इवनिंग सर। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? सेम प्रोसेस है आपका, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है तो आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है? ओके, ओके सर। ओके। चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलता हूँ। और अभी एक बार ना यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं, यहाँ पे भी लिंक शेयर कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? लिंक क्लिक करके देख सकते हो अभी, ओके? चलिए, लिंक क्लिक करके छोड़ दीजिए, बाद में अपना आराम से देख लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ओके? थैंक यू ऑल। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बेटा, बाय सर। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।